الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو سارے جہانوں کا تن تنہا مالک ہے. دن ہو رات ہو نیا ہو پرانا ہو، میرا اللہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے اور اسی کی ذات ہر چیز پر قبضہ قدرت رکھنے والی ہے. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی یہ ویڈیو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ میں آپ کو بہت پیارا اور بہت خوبصورت وظیفہ بیان کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی سب حاجات پوری ہوں گی. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو بہت ساری جگہوں پر یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنا ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ پہ زیادہ ہوگا، اور جتنا ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ پہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی ایک انسان مضبوط ایمان والا ہوتا ہے اور وہی بہترین مومن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، توکل تو ہم نے اللہ پر کرنا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کی بات آتی ہے تو بہت ساری ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے میں ہمیں دو مختلف چیزیں ملتی ہیں. ایک تو ہمارا ذہن اس چیز پہ سیٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کا کیا مطلب ہے، کہ محنت کرو یا نہ کرو، بیٹھے رہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو. اگر میرے مقدر میں یہ ہوا تو مجھے ضرور ملے گا، یعنی اگر میرے نصیب میں رزق لکھا ہے، مال و دولت لکھی ہے، تو اللہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے دے دے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ ملازمت، یہ جاب لکھ دی ہے، تو میں گھر ہی بیٹھا ہوں گا اور مجھے وہ ملازمت مل جائے گی. اور بہت سارے میرے بچیوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے اگر ہم نے ایگزام میں پاس ہونا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی پاس کر دے گا. میں محنت کروں یا نہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو یہ ہمارا ذہن سیٹ ہے، اور دوسرا ذہن کیا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم محنت کرو گے تو تبھی تمہیں تمہاری محنت کا پھل ملے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے قوت بازو پر اعتماد کرو اور محنت کرنا شروع کر دو. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی ذات ہے، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ قادر ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی محنت کرنا، اپنی کوشش کرنا، اپنی پلاننگ، اپنی عقل کو استعمال کرو، تبھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی. یہ دو مختلف ذہن ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل یہی دو چیزیں ہیں، ان کو ملانا ہے. ہم نے بحیثیت مسلم ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، ہم نے وہ میئرز بھی لینے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائیں. ہم نے وہ اسٹریٹجی بھی بنانی ہے، ہم نے اچھی پلاننگ بھی کرنی ہے. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارا توکل اللہ پہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اگر میں استعمال کر بھی لوں گا، یہ چیزیں اس وقت تک مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، یا اس وقت تک فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے حکم نہیں ہوگا، جب تک کہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. تو جب تک اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آئے گا کہ یہ ساری چیزیں مل کر میری کامیابی کا ذریعہ بنے، تو یہاں پر ایک چھوٹا سا مولا علی شیر خدا
रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान मुबारक मैं आपको बयान करता हूँ। वो फरमाते हैं कि जब तू, जिसका मफहूम कमोबेश ये बनता है कि जब तू अपने सारे असबाब कर लेता है, अपनी पूरी मेहनत करता है किसी चीज को करने के लिए, और फिर वो चीज नहीं होती, तो फिर हर काम को करने वाली जात तेरी नहीं, एक अल्लाह की जात है। तो इससे क्या निकलता है कि हमने अपनी पूरी मेहनत करनी है किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, और उसके साथ फिर हमने अल्लाह ताला पर तवक्कल करना है, उसकी मदद लेनी है। तो असल में तवक्कल क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा क्लियरली हमें ये बयान किया कि अल्लाह की जात पर तवक्कल है क्या। एक बार एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर पूछने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ के अल्लाह ताला पर तवक्कल करता हूँ, तो अल्लाह के आखिरी नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद किया, अपनी ऊँटनी को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। एक और सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल किया, और ये वो सवाल है, अल्लाह उनका भला करे, कि वो सवाल वो होते थे जो हमारे अक्सर जहनों में होते हैं, गर्दिश करते हैं। वो सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी ऊँटनी को बांधूं और फिर अल्लाह पे तवक्कल करूं, या मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ दूं और फिर अल्लाह पे तवक्कल करूं। खास तौर पर उन्होंने सिर्फ यही एक सवाल पूछा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया, पहले अपनी ऊँटनी को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। तो इसमें हम मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है कि अपनी तरफ से जो भी कोशिश है वो पहले करें, हम वो मेहनत करेंगे और उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करेंगे। यानी हम अपनी कार को, हम अपनी किसी भी सवारी को ताला लगाएंगे, लॉक लगाएंगे, फिर हम अल्लाह ताला पर तवक्कल करेंगे। अपने घरों को हम लॉक लगाएंगे, किसी जगह पे जाते हुए फिर हम अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल करेंगे। अपने इम्तिहानों के लिए हम पहले मेहनत करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे पास होने के लिए, फिर हम अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल करेंगे। यानी अगर हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में, उस कारोबार में हम अपनी मेहनत भी करेंगे, प्लानिंग भी करेंगे, यानी बिजनेस प्लान भी होगा, और उसके साथ साथ हम अल्लाह ताला पर तवक्कल करेंगे। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला पे तवक्कल है क्या। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, और ये चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियरली हमें बयान की। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक बार एक शख्स हाजिर हुआ और आकर उस शख्स ने किसी और शख्स का तज़किरा किया कि एक शख्स है जो अपने घर में या मस्जिद में बैठा रहता है और ये कहता है कि अगर अल्लाह ने मुझे रिज़्क देना हुआ तो वो मुझे घर बैठे बैठे दे देगा। तो देखिए इमाम साहब ने क्या फरमाया, वो जाहिल है, उस शख्स का इल्म नाकस है कि इस्लाम इस चीज की तालीम नहीं देता कि आप अपने घरों में बैठे रहो, मस्जिदों में बैठ जाओ और सिर्फ दुआओं का सहारा लो, और अगर अचानक अल्लाह की तरफ से होना हुआ तो वो कर देगा। हाँ, यहाँ पर एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं या कोई दो राय नहीं कि अल्लाह की जात हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे कर दे। अल्लाह ताला हर चीज पर कब्ज़े कुदरत रखता है। अल्लाह ताला हमें बगैर किसी चीज के, हमें बगैर किसी असबाब के हमारी भूख को खत्म कर सकता है। जिस तरह हम खाना चाहते हैं तो हम खाते क्यों हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है, और भूख का मतलब क्या? हमें एक महसूस होता है। तो भूख लगने का मकसद ये नहीं कि कोई फिजिकली चीज हमें आके लगती है और हम कहते हैं, एक अंदर का एहसास है, एक अंदर की फीलिंग है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जहन ये कहता है कि हम कुछ खा लेंगे,
تو وہ भूख खत्म हो जाएगी। तो ये भूख जो खत्म होती है, इसको क्रिएट किसने किया? अल्लाह ने। और खत्म किसने किया? अल्लाह ने। तो अल्लाह ताला इस चीज पर कुदरत रखता है कि वो बगैर खाने के हमारी भूख को खत्म कर दे। लेकिन अल्लाह ताला ने एक निजाम दिया, हमें एक तरीका बतलाया कि जिंदगी गुजारनी है तो इन सब चीजों को साथ लेके चलना होगा। एक और हदीस मुबारक में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कल के बारे में इरशाद फरमाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह पे वैसा तवक्कल करो जैसा कि अल्लाह ताला पर तवक्कल करने का हक है, कि वैसा तवक्कल करो जैसा अल्लाह ताला पे तवक्कल करने का हक है, तो वो तुम्हें रिज़्क वैसे अता करेगा कि जैसे कि वो परिंदों को रिज़्क अता करता है। अब जब इतनी सी हदीस हम बयान करते हैं तो अक्सर लोग इस चीज को गलत ले लेते हैं। वो समझते हैं कि जैसे अल्लाह ताला परिंदों को बैठे बैठे रिज़्क देता है तो वैसे ही अल्लाह ताला हमें भी बैठे बैठे रिज़्क अता करेगा, तो वैसे ही हमें भी रिज़्क मिल जाएगा। लेकिन हदीस का जो अगला हिस्सा है वो लोग नोट नहीं करते। इसी हदीस में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, जैसे परिंदे सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। तो इसमें हमें यह मैसेज मिलता है कि अपने घर में ठहरने से नहीं, हत्ता के परिंदे भी रिज़्क हासिल करने के लिए अपने घोंसलों को छोड़ते हैं। वो घरों से बाहर निकलते हैं और सुबह से लेकर शाम तक जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर जब वो शाम को अपने घरों को वापस लौटते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। हमने भी अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें पूरी करनी है, मेहनत भी करनी है, कोशिश भी करनी है, जिद्दोजहद भी करनी है और तवक्कल अल्लाह पे करना है। और इन सारी मेहनत के नतीजे में अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज लिखी होगी मेरे लिए तो वो मुझे मिल जाएगी। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हमने करना क्या है? तवक्कल हमने अल्लाह की जात पे करना है। जो अपने असबाब है, जो हमने मेहनत करनी है वो भी हमने जरूर करनी है। यानी जो मेरा भाई बहन अपनी मुलाजमत के लिए परेशान है, उसने मुलाजमत के लिए, जॉब के लिए कोशिशें भी करनी है। अगर किसी मेरे भाई बहन का कोई कारोबार है तो वो जो उसके लिए बेहतरीन प्लानिंग है वो भी करे। अगर किसी मेरे भाई बहन के लिए शादी का मसला है तो जो भी असबाब है वो जरूर करे और उन सभी असबाब के साथ साथ ये आज वाला अमल करे। यकीन कीजिएगा ये अमल इतना जबरदस्त है कि हर मुसीबत, हर परेशानी से निजात भी मिलेगी और अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपकी सब हाजात को पूरा भी करेगा। और जो आज वाला वजीफा और अमल मैं आपको बयान करने लगा, ये कुरानी दुआ भी है और यही दुआ हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हमें मिलती है। लेकिन हमने इसको पढ़ना किस तरह, ये आप तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह आपने अमल करना है, तो जो आप चाहेंगे अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको अता करेगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये तमाम फिक्रों से आजादी की दुआ है और आपने इसी नियत के साथ पढ़नी है कि अल्लाह पाक कि मैं अल्लाह ताला पर भरोसा करता हूँ। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। मुझे अल्लाह ही काफी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसी पर मैं भरोसा रखता हूँ या करता हूँ और वो बड़े तख्त का मालिक है। तो अगर मेरे किसी भाई बहन को कोई फिक्र है मुलाजमत की, फिक्र है रोजे की, फिक्र है शादी की, तो अपनी उस हाजत को अपने जहन में रखें और उसके साथ आपने सिर्फ एक तस्बीह इसकी सुबह को करनी है। सिर्फ एक तस्बीह इसकी आपने असर की नमाज के बाद करनी है। असर की नमाज के बाद कर ले, मगरिब की नमाज के बाद कर ले, लेकिन कोशिश यही करनी है कि जिस भी नमाज के बाद आपने ये वजीफा करना है तो उसी के बाद आपने करनी है। अव्वल आखिर 11 बार दूध पाक पढ़े और सिर्फ एक तस्बीह यानी सिर्फ 100 बार आपने इस कुरानी आयत को आपने पढ़ना है और अपने जहन में रखना है कि ऐ अल्लाह मुझे इस चीज की फिक्र है और मैं, यानी अगर मेरा शादी का मसला है या मेरे किसी कारोबार का किसी भी चीज का मसला है तो आपने उस नियत के साथ पढ़नी है और उसके साथ साथ आपने अल्लाह ताला से अपने दिल में दुआ भी करनी है कि ऐ मेरे अल्लाह अपनी रहमत से मेरा ये मसला हल कर दे। खुशबू का इस्तेमाल कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए
बल्कि इतना जबरदस्त अमल है कि आप हर साल के शुरू में तो इसको लाजमी करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐ मेरे अल्लाह मेरे पूरे साल के कामों को अपनी रहमत से सही कर दे और पूरा साल मुझे हर किस्म की फिक्र से आजाद कर दे। और दूसरा, 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़िएगा। ये बदनसीबी वाली बात है अगर कोई बंदा नमाज ना पढ़े। और ये वजीफा इतना जबरदस्त है, अगर आप इस एक वजीफे को अपनी सारी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिएगा अल्लाह ताला की रहमतें हमेशा आपके साथ साथ होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हर मेरी भाई बहन की हर हाजत को अपने गैब के खजानों से पूरा करे और हर दिन ईद का और हर रात शब बरात बना दे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत खैर रखिएगा। अल्लाह हाफिज।